हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। टुडे सेशन इज ऑफ द सीरीज उद्यमिता की ओर, which is a unique initiative of National Center for Innovations in Distance Education, IGNOU. NCID at IGNOU does various programs, conducts various activities to foster the spirit of innovation, startup, and entrepreneurship in the university. This is as per the lines of the Innovation Cell of Ministry of Education, which directs the higher education institutions to build up creativity, innovation, and entrepreneurship spirit among the learners. उद्यमिता की ओर एक विशिष्ट प्रकार का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम अपने लर्नर्स को बताते हैं कि विभिन्न सेक्टर्स में किस प्रकार की संभावनाएं हैं, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे स्टार्टअप्स बिल्ड किए जा सकते हैं थ्रू द बेसिक्स ऑफ इनोवेशन। तो यह कार्यक्रम, इसमें बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत सारे एपिसोड्स हैं। एवरी मंथ वी हैव 2 सेशंस on 2nd and 4th Wednesday, where the experts from different fields come and talk about the innovations in specific sectors. This is our episode 4th. Prior to this, we had episodes on possibilities of innovation and startups in biological sciences, poultry, and waste management. So learners, today we will be talking about food processing sector, the sector which has got huge scope. Why it is important to talk about the possibilities of innovations and startup opportunities, because there is a growing need of processed food because of the demand from the experts, also technological advancements and increase in agriculture production. All these factors pave the way so that we have what kind of entrepreneurship is possible in food processing. There are various segments, from fruits, vegetables, grains, dairy products, and the list is very long. So, in today's session, let us talk about the opportunities of innovation and startups in food processing sector. We have with us our 2 eminent experts. We have Dr. Dinkar Kamble ji, Assistant Professor, Food Science and Technology, School of Agriculture. And also we have Dr. O.P. Sharma ji, Director, NCID, IGNOU. It is our pleasure to have both of us together to discuss about food processing sector and innovations. Dinkar ji has a specialization in food science and technology, and he has done voluminous job in this sector. His area of interest is grain processing, new product development. Sir, it is a pleasure that you are here. Thank you. And our learners are very much eager to know about what is food processing actually. थैंक यू मैम। एंड मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि फूड प्रोसेसिंग ऐसा एरिया है जो सदियों से चला आ रहा है, कि ये आज का एरिया नहीं है। इसमें पहले क्या था, हम फूड स्पॉइल होता है, खराब होता है, और उसके लिए हम प्रोसेसिंग करते थे, उसको हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं। बट नाउ वो जो कंसेप्ट है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। अब हम उसको कमर्शलाइज तरीके से भी मार्केट में ला रहे हैं। जैसे कि एक आध प्रोडक्ट बनाया हमने, और वो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ के साथ शेल्फ लाइफ भी बढ़ रही है, और वो हम खाने में यूज करेंगे, उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। जो भी चेन में आ रहा है उसको हम थोड़ा सा प्राइजेज भी मिलेंगे हमारे फार्मर्स को उसके थ्रू, और हमारे लर्नर भी है वो स्मॉल स्केल पे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूज मार्केट है। जब हम इंडियन मार्केट इस फूड प्रोसेसिंग का देखते हैं तो ऑलमोस्ट 263 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर गया है आज, और इसका एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो करीबन 11% से ऊपर है, जो इंडियन इकोनॉमी में है। इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट शो कर रहा है, और एम्प्लॉयमेंट भी करीबन 12% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट शेयर है इस सेक्टर का, टोटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली रजिस्टर्ड जो भी कंपनीज है, रजिस्टर्ड वेंचर्स है फूड प्रोसेसिंग के, उनमें का है। सो इसमें 75% ऑफ द जो सेक्टर है वो सेक्टर स्मॉल स्केल सेक्टर है फूड का। सो इसमें हम देखते हैं, जब भी हमारा देश कृषि प्रधान है और देश का करीबन 20 से मोर एग्रो क्लाइमेट्रिक रीजन है, और उस एग्रो क्लाइमेट्रिक रीजन से हम अलग अलग प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस
प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उसमें हम ग्रेन्स है, और इन सारे ग्रेन्स में पोल्ट्री है, इवन दो लाइव स्टॉक है, एग्स प्रोडक्शन है। सो ये सारे प्रोडक्शन में, इवन दो मिल्क प्रोडक्शन में हम टॉप रैंक पे है, इवन दो हम सोचते हैं कि स्पाइसेस में भी हम एक नंबर पे है वर्ल्ड में। सो इतना सारा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमारा जो प्रोसेसिंग का लेवल है वो बहुत कम है। सो ये एक हमारे लिए पॉजिटिविटी की बात है। हमारा इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो कर सकते हैं। अभी हम ओवरऑल प्रोसेसिंग देखते हैं तो करीबन वो जाता है 10% तक। तो 10% से हमें बहुत 100% तक जाना है। बाकी जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज में करीबन 50% तक टोटल हम बोल सकते हैं कि प्रोसेसिंग का लेवल है। तो वो अचीव करने के लिए हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग रिलेटेड थिंग्स है और हम अलग अलग कर सकते हैं। हाँ दिनकर जी, बहुत सटीक आपने जानकारी दी। मतलब हमारे लर्नर्स को ये पता चला कि फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है। अगर हम इकोनॉमी के टर्म्स में देखें तो इसका मतलब इसमें बहुत संभावनाएं हैं और कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इसमें किए जा सकते हैं। लेकिन अब हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ड्राइवर्स होते हैं, मतलब क्या चीज़ है जो ये डिटरमाइन करती है कि इसमें इनोवेशन हो सके। मैडम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक तो जो भी इनोवेशन हो रहा है वो सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का हो, उस प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, तो इनोवेशन है। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग में पहले हमने जो एक हाईलाइट किया कि लेवल, प्रोसेसिंग ऑफ लेवल जो है 10% है। सो 10% से 90% तक जाना है और वेस्टेज भी ज़्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो इनोवेशन के लिए चालना देता है, जो कि हम नया इनोवेशन लाके उसको उस वेस्टेज को कम कर सकते हैं, सोसाइटी को हम बेटर प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के बाद जो कोविड में सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, लेकिन फूड इंडस्ट्री चल रही थी सर। क्योंकि फूड इंडस्ट्री चल रही थी क्योंकि उसमें उसके पास सोल्यूशन था। वट एवर द प्रॉब्लम इज देयर, नॉट जस्ट वो कि डेली नीड है उसलिए चल रही थी, बट दूसरी बात थी कि जो फूड है, फूड नॉट जस्ट अ फूड है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो मेडिसिन भी है। और मेडिसिन के तौर पे हम फूड को ले रहे थे कोविड के दौरान। फूड विल बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन विल बी द फूड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। सो ये एक बात हो गई कि फूड में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं। ये एक हो गया। दूसरा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग हो गया। तीसरा ये है कि जैसे कि एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस है, एग्जिस्टिंग मतलब जो भी प्रोसेसेस है, प्रोडक्ट्स है, उनमें कुछ कमियां हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि टोटल कमियां हैं, लेकिन हम ईज की तरफ जाते हैं, इफिशियंसी की तरफ जाते हैं, तो इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये ड्राइवर्स है एक तो, और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट कि हम चीज़ों को, जैसे कि लेवल ऑफ सोसाइटी बढ़ गया है इकोनॉमी की वजह से भी, कि वो परचेज करके खा सकते हैं प्रोसेस प्रोडक्ट। दूसरा बात है कि वर्किंग वुमेन्स और बोथ हस्बैंड वाइफ वर्क कर रहे हैं, तो दे डोंट हैव टाइम टू कुक एंड प्रिपेयर द फूड इन होम। सो प्रोसेस फूड की तरफ गया है, फूड इंडस्ट्री को ये चालना दे रहा है। लोगों का इनकम बढ़ गया है तो वो भी परचेस कर रहे हैं। हेल्थ का इशू है ये, और प्रोडक्शन का इशू है, प्रोडक्शन, लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, तो हम उस तरीके से उस पर सोल्यूशन दे सकते हैं थ्रू इनोवेशन। और इस फूड इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, और स्टार्टअप में भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इनोवेशन नहीं करेंगे स्टार्टअप के दौरान, तो इनोवेट और इवापोरेट। सो अदरवाइज हम इनोवेट नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो इनोवेशन के थ्रू हम इन सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं। ये एक की ड्राइवर्स है हमारे, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चल रहा है उनमें इनोवेशन चल रहे हैं, उनके पीछे एक थॉट्स है कि उसके थ्रू हम इनोवेट करके फूड इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। और फूड इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली चल रही है वो, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो सकती है लेकिन फूड इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। इवन तो कंप्यूटर खराब हो सकता है, कल हम कंप्यूटर की जगह दूसरा कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन फूड तो खाना ही पड़ेगा। सो और इसको देखते हुए इंडिया में इतना बेस, कंज्यूमर बेस है, और वो कंज्यूमर बेस हमेशा कुछ नई चीज़ की डिमांड करता है। नई चीज़ें चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, वो भी एक ड्राइवर है। कंज्यूमर डाइवर्सिफिकेशन है, कंज्यूमर का डिमांड है, तो हमें इनोवेशन करना पड़ेगा और उनका डिमांड मीट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा भी कभी नोकिया हो जाएगा। बिल्कुल।
दिनकर जी, आपने बहुत तरीके से ड्राइवर्स के साथ साथ आपने स्टेक होल्डर्स के बारे में भी जिक्र किया कि कैसे हमारा जो ग्रोइंग अर्बन मिडिल क्लास है उसकी प्रेफरेंसेस और उसका टेस्ट वगैरह चेंज होता है, तो उसमें निश्चय ही बहुत स्कोप है। शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि फूड प्रोसेसिंग, इनोवेशन, ये सारा जैसे कि दिनकर जी ने बताया काफ़ी समय से प्रचलित है इंडियन सोसाइटी में। शब्द बदल गए, टेक्निकलिटीज बदल गई, लेकिन हम इसको यूज करते हैं। आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंस है इनोवेशन की इस सेक्टर में? क्या संभावना है कि जो हमारे खाद्यान्न हैं या खाने से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसमें इनोवेशन होगा या हो रहा है? देखिए दीक्षा जी, डॉक्टर दिनकर ने जो बताया कि हमारे यहाँ कई इलाकों में जो फ्रूट हैं या वेजिटेबल्स हैं उनका बड़ा मास प्रोडक्शन भी होता है जी। और वो एक सीजनल प्रोडक्शन होता है और उस सीजन में हम सारे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो कंज्यूम नहीं कर सकते और एक समय ऐसा आता है जब उनकी जरूरत भी होती है। बिल्कुल। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी मेथड्स, ऐसी विधियां, इस तरीके के इनोवेशंस करना जरूरी है ताकि आप उनको प्रिजर्व कर सकें और उनको बाद में भी यूज कर सकें। और जहां तक इनोवेशन की बात है, वो न केवल उनको सेल्फ लाइफ बढ़ाने के हिसाब से, बट उनको अलग अलग तरीके से कैसे आप यूज कर सकते हैं, चाहे उनको आप डीप फ्राइड करके करें या और किसी तरीके से ड्राइड करके करें। और ये बहुत सारी हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं। अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें और उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में ही अगर हम लेके चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, लिए जा रहे हैं, जहाँ के हम अपने जहाँ एक तरफ वेस्टेज हो रहा है और एक तरफ डिमांड है, तो उस गैप को इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनोवेशन की हेल्प से आप फिलअप कर सकते हैं। और इनोवेशन केवल इनोवेशन ही नहीं है, क्योंकि आपने इनोवेशन कर लिया, उससे आप बिजनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप बिजनेस नहीं क्रिएट करेंगे तो आपका एक मोटिवेशन है, आपका जो आपने इनिशिएटिव लिया वो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि किसी भी जो आपका कंज्यूमर है, यूजर है, चाहे वो आपका सिटीज में हो या अदर अर्बन एरियाज में हो, तो उनको जो रूरल एरिया से जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो क्यों मिलेंगे, किस तरीके से वो उसको लेंगे, किस तरीके से रेवेन्यू मॉडल वहाँ डेवलप कर रहे हैं, वो सारी चीजें बिजनेस, जब आप आइडिया को, इनोवेशन को एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करेंगे तभी आप ये कर पाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी यूथ या कोई स्टूडेंट इस तरीके का इनिशिएटिव लेता है तो उसके दिमाग में रहता है कि मैंने एक इनोवेशन तो कर लिया, एक नया तरीका मैंने निकाल लिया फूड को वेस्टेज से होने से रोकने के लिए, लेकिन उसको लोगों तक ले जाने के लिए वहां कहीं ना कहीं उसको एक प्रॉपर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना पड़ेगा। जो आपने कहा कि जब हम बिजनेस में इनोवेशन ऐड करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, तो वो एक स्टार्टअप की फॉर्म में आएगा। और फॉर्चुनेटली आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है स्टार्टअप, और पर्टिकुलरली अगर फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में देखते हैं तो इनोवेशन और स्टार्टअप पे स्पेशल फोकस दिया जा रहा है, स्पेशल प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, स्पेशल फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बहुत सारे लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं। शुरुआत में डॉक्टर दिनकर ने बताया कि कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने, अगर हम देखें कि रूरल एरिया में पर्टिकुलरली जो रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी नहीं है, फिर भी वो उस तरीके का अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से होंगे या और कई तरीके से। तो ये है, लेकिन जरूरत है इसको पूरी तरीके से एक कॉमर्शलाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, और बाकी जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको उस फील्ड में लाने के लिए। थैंक यू शर्मा जी जानकारी देने के लिए। और मैं फिर से अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, दिए गए फोन नंबर्स पे आप बात कर सकते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथ हैं वह आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। तो जुड़े रहिए, इंटरैक्ट करते रहिए। दिनकर जी, इनोवेशन की इम्पोर्टेंस तो है, ये सर्वविदित है, लेकिन ये बताइए कि कैसे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई पर्सन है, कैसे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जा सकती है? क्या कोई एग्जांपल्स हैं किसी स्टार्टअप्स के? एग्जांपल्स तो जरूर दे सकते हैं, तो उसके पहले मैं ये सारी वैल्यू चेन को बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो वैल्यू चेन है, जो भी हमारा फूड प्रोसेसिंग का है, वो शुरू होता है प्रोडक्शन से। और इवन दो प्रोडक्शन में भी फार्मर्स इन्वॉल्व है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है,
लार्ज कोऑपरेटिव भी इन्वॉल्व है, हम उसमें भी अपना एज ए इंटरप्रेनर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन के बाद आता है प्राइमरी प्रोसेसिंग है, लोकल ट्रेडर्स है। इवन दो प्राइमरी प्रोसेसिंग में हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, इवन दो वो एक वैल्यू एडिशन है। जो भी ग्रेडिंग कर रहे हैं, सपोज एक आध ग्रेन को लिया हमने या फ्रूट्स को लिया, हम मार्केट में जब भी फ्रूट खरीदने जा रहे हैं तो उस मार्केट में भी अलग अलग ग्रेड के फ्रूट्स है और उसके थ्रू वो अलग अलग ग्रेड के फ्रूट्स का अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि हम सॉर्टिंग करके गुड क्वालिटी का एप्पल दे रहे हैं लोगों को, तो उस एप्पल की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है सर, कि वो 10 रुपए 10 रुपए से नॉर्मल एप्पल के कंपैरिजन में महंगा है। तो वो एक वैल्यू एडिशन है, वो हमारे फार्मर्स को, हमारे इंटरप्रेनर्स को वो हम बोल सकते कि मनी ज्यादा दे सकता है और प्रॉफिट ज्यादा दे सकता है। ये उसके बाद है सेकेंडरी प्रोसेसिंग। हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग में उस प्रोडक्ट को, उस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसमें भी हम अलग अलग बोल सकते हैं कि प्लेयर्स है, जैसे कि लार्ज कंपनीज है और स्मॉल कंपनीज भी है जो प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट को और वो मार्केट में बेच सकते हैं, उसका वैल्यू भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली पोटैटो लेते हैं, पोटैटो जब मार्केट में खरीदते हैं तो 10 रुपए के जी, 30 रुपए के जी मैक्सिमम मिलता है और वही 50 ग्राम का पॉकेट हम 30 रुपए को खरीद रहे हैं। सो ये वैल्यू एडिशन है। तो इस प्रकार से हम उस पे वैल्यू डालते हैं और ये जो भी इंटरप्रेनर है वो अपना इनकम, इवन दो फार्मर्स भी अपना इनकम बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन्वॉल्व है। इसके बाद आता है कि पैकेजिंग का स्टेज है, जो पैकेजिंग मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम भी पैकेजिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट को और उसके थ्रू भी उसका वैल्यू बढ़ रहा है। जब पैक करते हैं तो पैकेजिंग के थ्रू भी वैल्यू बढ़ रहा है। इवन दो हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि कट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, एडिबल कोटिंग है, उसमें एडिबल कोटिंग करके भी हम वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे कि मार्केट में हम बता रहे थे सर, उस दिन भी डिस्कशन हो रहा था हमारा कि जो कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो पैक करके हम बेच सकते हैं। ये भी एक इंडस्ट्री है। और उसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे कि मैक्सिमम इनोवेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हुई है सर। उसके बाद बेसिकली फूड डिलीवरी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी है, वो हो गया। उसमें कैरी फॉरवर्ड एंड अलग अलग एजेंट है, स्टॉकिस्ट है, वेयर हाउसेस है, उसके थ्रू हम ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और ये प्लेयर्स है। उसके बाद आए एक्सपोर्ट वाला, जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इवन दो फार्मर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज ए इंटरप्रेनर। इवन दो हमने देखा है कि डिफरेंट क्रॉप के लिए ग्रोवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ग्रेप ग्रोवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपना प्रोडक्ट, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज है, वो भी अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं एज ए इंटरप्रेनर बोल के। फार्मर्स भी एज ए इंटरप्रेनर बोल के काम कर रहे हैं इस सेक्टर में। तो ये एक बहुत ही अलग अलग स्टेजेस में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं एज ए इंटरप्रेनर और हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। ये सेक्टर की बात होगी डिफरेंट इसकी। और इसमें बहुत सारे सेक्टर्स भी है, जैसे कि हम बोल रहे थे, मैडम ने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि डेयरी सेक्टर है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट है, चीज है, उसके बाद पनीर है, छाछ है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम छाछ भी खरीद के पियेंगे। जनरली घरों में बनता था, अभी तो हम मार्केट से छाछ भी खरीद के पीते हैं। ये भी एक फार्मर्स का इनकम डबल करने का ही तरीका है। जैसे डेयरी सेक्टर में घी है, ये तो हमारी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, घी, चीज, ये सारे प्रोडक्ट मिल्क से होते हैं। उसके बाद हम ग्रेन एंड ऑयल सीड में भी जा सकते हैं। ग्रेन एंड ऑयल सीड एक बड़ा तबका है, जो कि हमने ग्रेन प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है इंडिया में। और लास्ट ईयर ये अभी हम ऐसे ईयर के एंड में है जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है, जो हम जो मेजर ग्रेन्स है, जैसे कि गेहूं है, राइस है, मेज है, इसको छोड़ के नहीं बोलूंगा मैं, कि इसके साथ ही हम हमारे जो पुराने ग्रेन्स है, कोर्स ग्रेन्स है, कि उसको हम हिंदी में बड़े अनाज बोलेंगे, उसके तरफ भी जा रहे हैं। वो भी हेल्थ रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स है उसके साथ भी हम वो ये बोल सकते हैं कि उसका कंज्यूमर डिमांड ड्यू टू द हेल्थ बेनिफिट्स बड़ा है। और 5-10 रुपए को उसको कोई पूछता नहीं था कुछ जमाने पहले, आज वही 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो ऐसे खरीद के, वो वैल्यू एडिशन के थ्रू हम। इवन तो सर सिंपल में एक एग्जांपल बताऊंगा। हम जब नाचनी है, जिसको रागी बोलते हैं हम हिंदी में, तो रागी कलर की वजह से हम खाते नहीं थे, बोलते थे कि गरीबों का अनाज है।
जैसे कि गेहूं और उसको कंपैरिजन करते हैं, तो वो प्रोसेस प्रोडक्ट में अभी उसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, हम ऑनलाइन उसको खरीदते हैं। इवन दो जो ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स है, मतलब वो पुराने जमाने से, मतलब वेस्टर्न साइड से आया है, जिसको हम बहुत लाइक करते हैं, जैसे कि पास्ता है। अब उसमें भी इनोवेशन करके लोगों ने ये रागी को इनकॉर्पोरेट किया है ग्रेन में, जैसे कि बड़े अनाजों के, तो उसका डायरेक्टली वैल्यू बढ़ गया। जो नॉर्मल गेहूं का पास्ता हम खाते हैं, ड्यूरम से बनता है, तो वो एक नॉर्मली हमें जो भी उसके दुगना कीमत हम इस प्रोसेस प्रोडक्ट को दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ से प्रोड्यूस अनाज है उसके थ्रू जो प्रोसेस हुआ है, तो उसका इतना वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो ये एक सेक्टर है। एनिमल फीड का और फूड का भी सेक्शन है, जो कि हम एनिमल जो भी वेस्टेज बच रहा है हमारे मेजर प्रोसेसिंग के थ्रू, उसको हम एज ए एनिमल फीड यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेकरी का सेक्शन है, उसमें कुकीज है, ब्रेड्स है, बिस्किट है, बेवरेजेस है, उसमें अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है, जो भी फ्रूट से भी बनते हैं, जो कि हमने बहुत वाइन है। अभी कंज्यूमर का ट्रेंड भी बड़ा है। शुगर एंड कन्फेक्शनरी का एक सेक्शन है टोटल, जिसमें चेविंग गम्स है, बार्स है, इतना सारा ह्यूज एरिया है। उसके साथ साथ सी फूड्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का तो बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें हम बोल रहे थे कि ओनली 4% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो 4% से 100% तक जाना है, इतना सारा ह्यूज डिमांड भी है, और हम कंज्यूमर का डिमांड मीट नहीं कर पा रहे हैं। और मीट प्रोसेसिंग का भी एक सेक्टर है, जिसमें सॉसेजेस है और रोस्टेड चिकन है, ड्रमस्टिक है। हमने देखा है कि केएफसी का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, कंज्यूमर की भीड़ लगी रहती है। सो प्रोसेस प्रोडक्ट के लिए इस वेरियस सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जाओ आप, कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी 100% है। कि और इस पे मैं तो बोलूँगा सर, मेरा भी एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, कि हम जो कॉलेज लेवल में है, वहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, कोर्स करिकुलम का पार्ट होके। तो उसमें कुछ सीड मनी दिया जाता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि डबल 100% ऑफ द प्रॉफिट है इस बिजनेस में। तो इस किसी भी सेक्टर में जाएंगे आप, तो ये अलग अलग सेक्टर्स है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब राइट फ्रॉम फूड, ग्रेन्स, मिलेट्स एंड सी फूड्स, व्हाट नॉट, मतलब हम जो कुछ भी हम खा रहे हैं सभी में संभावना है कि इनोवेशन, और देख भी रहे हैं कि वाकई में हमारी जो शेल्फ्स हैं, जो शॉपिंग में, वो सारी चीज़ें बदल चुकी हैं जिस तरह से। इट इज़ ऑल प्रोसेस्ड फूड दैट वी आर सीइंग, एंड ऑल्सो इट हैज़ अ वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिटिव बेनिफिट्स ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ easy to cook also. So these are some of the you can say breakthrough innovations in the form of foods processing sector. But शर्मा जी, ये बताइए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स में? मतलब ये थॉट तो सबके दिमाग में आता है, बट व्हाट इट रिक्वायर्स टू डू इनोवेशन और टू बी अ बिगिनर इन द स्टार्टअप फॉर दिस सेक्टर? देखिए, ये सेक्टर जैसे अभी डॉक्टर दिनकर ने बताया कि बहुत वास्ट सेक्टर है। जी, अभी हम जी। 4% केवल अपने फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस कर पा रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से या दूसरी कंट्रीज के हिसाब से, बहुत बहुत कम है ये। जी। उसमें अगर हमें आगे बढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है, इनोवेशंस पे जाना है, तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। जी। और इस प्रॉब्लम को मुझे लग रहा है बहुत माइन्यूटली स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें केवल एक एरिया नहीं है। हम ब्रॉडली कहें कि फूड प्रोसेसिंग है, अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, मिलेट्स की बात करी, उसमें कहाँ कहाँ कैसे वैल्यू एडिशन करके जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सॉल्यूशन दिया जा सकता है, उनको जो उनके कंज्यूमर्स हैं उन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, पैकेजिंग कैसे की जा सकती है, किस तरीके से मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है उसको, बहुत कुछ। सबसे पहला तो जरूरी है कि आप उन प्रॉब्लम्स को और नीड्स को आइडेंटिफाई करिए, और फिर उनमें से जरूरी है कि आप उनमें से अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको उनमें से किस फील्ड को चुनना है। क्योंकि फील्ड तो वहाँ n नंबर है, सैकड़ों, जैसे अभी डिस्कशन में आ रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी नीड है, इतने सारे गैप एरियाज हैं जहाँ पे इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत होगी कि आप उसमें से किसके लिए ज़्यादा सुटेबल हैं। वो आपको अपने देखना है कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, क्या मेरे पास एक्सपर्टाइज है,
कितना फाइनेंसेस मैं अपने आप जुटा सकता हूँ, जुटा सकती हूँ, उन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर आपको आगे बढ़ना है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद में ये भी देखना है कि अगर मैं इसमें इनिशिएटिव ले लूँ तो इसको कैसे मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए मेरे पास में टीम में खुद के अलावा ये भी जरूरी है कि और जो मेरे सपोर्ट में है, क्योंकि आज के समय में आप कोई भी इनिशिएटिव लीजिए, कहीं ना कहीं उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो कहीं टीम में आपके पास में कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, एक कोई ऐसा एक्सपर्ट है जो आपको मैनेजरियल चीज़ों को देख सकता है, एक कहीं फाइनेंसेस को देख सकता है, आप कहीं मार्केट को देख सकते हैं, आप ये क्या नीड है उनको कर सकते हैं। इस तरीके की एक कोर टीम बहुत ज़रूरी है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। और फिर उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि ये आज शुरुआत है, लेकिन फ्यूचर में मुझे कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक लेके जाना है। आप कहीं ना कहीं आपके एक फेज्ड वे में आप गोल सेटिंग भी आपको करने की ज़रूरत है कि कब मुझे कहाँ, क्योंकि जब तक आप उसको एक टारगेट के लेकर के नहीं चलेंगे तब तक आप उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे जितना हो सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि जब आपने टारगेट फिक्स कर दिया तो उसको परसिस्टेंटली आपको फॉलो अप करना है, चेज करना है, उसके लिए रिसोर्सेज जनरेट भी करने हैं। और रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए फॉर्चुनेटली ये है कि आज के समय में गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे प्राइवेट वेंचर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, प्रॉमिसिंग है, जिसमें लग रहा है कि बहुत अच्छी बिजनेस हो सकती है फ्यूचर में, तो बहुत सारे सपोर्ट करने वाले भी आपके पास आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि शुरुआत करने के बाद में आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वही फाइनल नहीं है। यू विल हैव टू बी ओपन माइंडेड। आपको अगर क्रिटिसिज्म है उसको एक्सेप्ट करना है, कोई सजेशंस है उनको एक्सेप्ट करना है, उसके हिसाब से अपनी अप्रोच में, अपनी मेथोडोलॉजी में, स्ट्रेटेजी में मॉडिफिकेशन भी लाने हैं, बदलाव भी करने हैं। और वो जरूरत है क्योंकि जब तक आप सामने वाला जो आपका यूजर है, कस्टमर है, उसकी नीड को देखते हुए बदलाव नहीं कर रहे हैं, और अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि जब हम कोई इस तरीके का बिजनेस इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्टअप इनिशिएटिव लेते हैं, कई भी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। हमेशा ऐसा नहीं कि आप सक्सेसफुल होंगे, कई बार फेलियर भी होते हैं। और थोड़ा सा भी कहीं आपको झटका लगा और आप एकदम से परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, तो उससे भी बचने के लिए आपके अंदर एक ऐसा एक हौसला और हिम्मत और एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि नहीं, अगर होगा तो उसको भी मैं कैसे संभाल सकता हूँ। क्योंकि ये तो जब आप एक जर्नी पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें आती ही रहेंगी। और उसके साथ साथ में आपको ये भी जरूरत है कि समय समय पर आप कुछ चीजें जो आज सही हैं, हो सकता है कल को वो सही नहीं होंगी। तो आपको एक लर्न और अनलर्न वाला पैटर्न भी आपको फॉलो करने की जरूरत है, और अकॉर्डिंगली मॉडिफाई योरसेल्फ, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई योर स्ट्रेटेजी आपका पूरा। तो मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। बिल्कुल एक एडवेंचरस राइड है ये कि कैसे हम स्टार्टअप्स तक पहुंचते हैं और कैसे हम अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस सेशन में मिली। अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कोई उदाहरण है इस सेक्टर में और किस प्रकार से हमारे इग्नू के स्टूडेंट्स फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अपने इनोवेशंस कर रहे हैं। लेट अस ब्रेक फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study, IGNOU, offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project.
Eligibility, bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments, practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio, So, welcome back to the session on innovations and startup opportunities in food processing sector. Viewers, if you are interested to join the session, please call at the given number. The experts will answer all your queries related to beginning the startups in this area. Dinkar ji, the startups in food processing sector have started gaining momentum, जैसे कि शर्मा जी ने बताया, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी और भी संभावना है. ये बताइए कि what are the trends of the startups in this area? मैडम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. सर ने थोड़ा सा बताया उस पहलू को, हमने प्रकाश डाला सर ने कि इनोवेशन की क्या ज़रूरत है. तो एक तो मैं थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूँगा. जो भी फूड मटेरियल है वो हम नया फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे कि इसमें, और फूड को टेस्टी बनाने के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टेस्ट है, उस तरीके से हम अलग अलग बना रहे हैं. उसके बाद फूड को मोर न्यूट्रिशियस कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे कि फोर्टिफाइड फूड का भी एक कंसेप्ट आ गया अभी नया वाला. एंड ये तो हो गया कि इनोवेशन इसके बारे में, कि फूड के बारे में, टेस्ट के बारे में. उसके साथ ही हम सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं. जैसे कि स्पेसिफिकली हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग की भी बात है, उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है. और उस इनोवेशन के जरिए हम, इवन दो ऑटोमेशन की, रोबोटिक्स की बात है, ये सारे एक इनोवेशन में ही आ रहा है. 3D फूड प्रिंटिंग है, जैसे कि स्मार्ट पैकेजिंग है, एक्टिव पैकेजिंग है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि मीट कंजम्पशन का है तो प्लांट बेस्ड फूड अभी आया है. ये यानी फ्लॉज है एग्जिस्टिंग प्रोसेस में, उसमें भी इनोवेशन करके उस फ्लॉज को हम कम कर सकते हैं. सो ये इनोवेशन के थ्रू एक स्मॉल उस इनोवेशन को हम कमर्शलाइज भी कर सकते हैं. कि फॉर एग्जांपल हम R&D इंस्टीट्यूशंस है, वो भी फूड प्रोडक्ट बना रही है, नए नए फूड प्रोडक्ट बनाती है, वो टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज हो रही है, तो उसका एक एंटरप्राइज बन रहा है. तो ये एक तरीके से हम टारगेटेड न्यूट्रिशन है, इवन दो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन बोलेंगे हम. और उसके बाद मैं एक ट्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैडम ने पूछा कि क्या ट्रेंड्स है फूड में अभी, तो ये तो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन है. लोगों को देख के उनकी नीड्स क्या है, उस नीड को टारगेट करके हम स्पेसिफिक उस पर्सन के लिए भी फूड डिज़ाइन कर रहे हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, डायबिटिक पेशेंट के लिए हम फूड डिज़ाइन कर रहे हैं, हम ओबेस पेशेंट के लिए फूड डिज़ाइन कर रहे हैं. इवन दो कभी कभी हम शुगर फ्री का एग्जांपल लेते हैं, वो प्योरली डायबिटिक पेशेंट के लिए है, मिलेट बेस्ड फूड है. ऐसे पर्सनलाइज न्यूट्रिशन के तौर पे आ गया. उसी को देखते हुए अभी ट्रेंड चल रहा है कि ऑर्गेनिक फूड का, लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं. उसमें नेचुरल फूड्स है,
बोल सकते हैं कि वेगन फूड से बहुत सारा प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट का जो ट्रेंड में बता रहा था कि पहले भी कि 2 इसमें बहुत इनोवेशन हुए हैं सर, मैं बताना चाहूँगा। वो एक है ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम में जो आईटी बेस्ड है, आईटी का उसमें यूज करके हमने ऐप डेवलप किए हैं और उसके थ्रू फूड की डिलीवरी हो रही है। वो एक इनोवेशन है, उसमें बहुत सारे प्लेयर मार्केट में आ गए। सिमिलरली वेगन फूड्स में भी बहुत सारे, इवन दो प्लांट बेस्ड मीट है, प्लांट बेस्ड मिल्क है, हम स्मॉल एग्जांपल लेते हैं सोया मिल्क का एग्जांपल है, या पीनट्स और जो भी ऑयल सीड्स है उसमें भी मिल्क प्रोड्यूस करके लोगों ने बिजनेस डेवलप किया है। ये भी एक ट्रेंड रहा है, ये प्लेटफॉर्म का होगा। एक्सपोर्ट का ट्रेंड है, अलग अलग फूड प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। इवन दो लोगों को होम कुक फूड के बारे में भी बहुत दिलचस्पी है, तो ऐसे होम कुक फूड के बारे में भी बहुत सारा इनोवेशंस हो रहा है। लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें भी एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं। पैक वर्सेस लूज फूड, पैक फूड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम जो भी फूड मटेरियल है उनकी पैकेजिंग करके भी एक एंटरप्राइज है, वो भी एक प्रकार से। कोविड के बाद तो हमने डिस्कस किया ही है, फंक्शनल फूड का एग्जांपल है। उसके बाद कट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जो हम इजीली अवेलेबल होंगे मार्केट में। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स है, आरटी है, रेडी टू ईट फूड्स है, इवन दो रेडी टू कुक फूड्स है। ऐसे फूड प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं कि कन्वीनियंस फूड है, वो कि टाइम से हो, उसकी तरह से हमने इसको हाई प्रोटीन फूड और मल्टीग्रेन फूड का एक ट्रेंड है जिसमें भी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अभी उसका डिमांड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फूड का क्वालिटी एस्पेक्ट हम बात करते करते रह गया था, उस पर भी मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। इवन दो क्वालिटी रिलेटेड थिंग जो है वो लीगल एस्पेक्ट भी है, क्वालिटी से रिलेटेड थिंग भी, उसमें भी कंसल्टेंसी सर्विसेज एक प्रकार का इंटरप्राइज ही है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार से। और सेफ एंड न्यू फूड पैकेजिंग भी है। एक इनोवेशन में ऐसे ही बताना चाहूँगा कि हम मिल्क की क्वालिटी को देखते हैं तो उसी पैकेजिंग मटेरियल में ही हमने एक सेंसर डाला है। जैसे ही मिल्क की क्वालिटी ये हो जाती है, साइंटिस्ट लोगों ने उसमें इनोवेशन किया है, तो वो पैकेजिंग मटेरियल का सेंसर का कलर चेंज हो जाता है। ये एक स्मॉल इनोवेशन है, बट उसका भी एंटरप्राइज लोगों ने यूज किया है। वो भी एक हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी इनोवेशन करके उसमें भी हम काम कर सकते हैं। ये तो ट्रेंड की बात हो गई। सो उसके बाद ये सारे एवेन्यूज है और सब इसमें एग्जाम्पल भी है। मैं एक मोटे मोटे तौर पे एक कॉमन एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि मैंने अभी बोलते बोलते बोला कि ई प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ऑर्डरिंग ऑफ फूड, उसमें हमारे इंडियन जोमेटो एंड स्विगी, ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। दे आर मेजर कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हैं और कंट्रीब्यूटर भी है ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम में। उनका करीबन टर्नओवर 7,000 से ऊपर है 2023 का, और वो भी एक स्टार्टअप थे, अब इतना बड़ा कंपनी बन गए हैं। एक उन्होंने जो रियल लाइफ का सोल्यूशन प्रॉब्लम था उसको सोल्यूशन दिया है कि घर बैठे बैठे हम ऑर्डर कर सकते हैं। एक इनोवेशन है, आईटी बेस्ड इनोवेशन बोल सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पेपर बोट का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि हमने जो फ्रेंड्स है वो खाना खाते थे दोपहर को बैठ के सर, और उस एक उसकी फ्रेंड की माँ उसके डिब्बे में ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स मतलब बेवरेजेस देती थी। तो उसी से आइडिया लेके उन्होंने इनोवेशन किया और जो भी पेपर बोट का जन्म हुआ है। ये एक बहुत अच्छा वेंचर है, वो भी मार्केट में वेल इस्टेब्लिश्ड है, वो भी स्टार्टअप है। और हम लोग मिल्क के बहुत शौकीन है, मिल्क घर में कैसे मिलेगा क्या है, इसका एक सोल्यूशन भी ढूंढा और उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे मिल्क बास्केट। मिल्क बास्केट अपने डोर तक मिल्क पहुंचा रहा है जितना आप बोलोगे उस टाइम पे, और उससे पैसे अर्न कर रहा है। तो ये एक स्मॉल एग्जांपल है। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल और भी देना चाहूँगा मैं, जैक फ्रूट 365। तो ये जैक फ्रूट 365 के बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं कि सर ने एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी बताई और रॉ मटेरियल का स्टेटस बताया मैंने कि हमारे देश में जैक फ्रूट का बहुत सारा प्रोडक्शन है, फिर भी उस पर प्रोसेसिंग कम होता था। तो एक माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर ने अपना जॉब छोड़ के आके अपने होम टाउन में इस पे रिसर्च किया
और रिसर्च करके जैकफ्रूट 365 नाम की कंपनी खड़ी की और वो उनको अवार्ड भी मिला है। सो वो कंपनी आज सबको जैकफ्रूट पाउडर, ग्रीन जैकफ्रूट पाउडर प्रोवाइड कर रही है। सो ये स्मॉल एग्जाम्पल है, उसके जरिए हम सीख ले सकते हैं और हमारा भी प्रयास कर सकते हैं, हम भी उन्हीं की तरह हमारा वेंचर खोल सकते हैं। तो ये तो मैं एग्जिस्टिंग के बारे में बता रहा था, तो हमें सर भी बताएंगे, हमारे एनसीआईडी के डायरेक्टर हैं। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग सर। शर्मा जी, IGNOU has been incubating and mentoring our students, and there are many students who have come up with their startups in several areas, but also in the food processing sector. So can you please elaborate that how NCID at IGNOU is developing this culture of innovation and startups among our students? दीक्षा जी, ये मैं जहाँ तक अपने इग्नो के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ कर रहे हैं इन द सेंस के, चाहे वो इनोवेशन की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, या अपने बिजनेस सेटअप, एंटरप्राइज सेटअप की बात हो। अभी मुझे याद आ रहा है कि इस साल हमने जिनको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया, उनमें भी हमारे एक स्टूडेंट ने जैसे अभी उसकी फूड डिलीवरी की बात कर रहे थे, तो कई बार ये होता है कि फूड जहाँ किचन है और वहां से घर तक जाते समय उसका टेम्परेचर की बड़ी प्रॉब्लम, ठंडा हो गया या ये खाने लायक नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके का एक डिवाइस तैयार किया है, इनोवेट किया है, जो कि ये इंश्योर करेगा कि उसका फूड का टेम्परेचर उतना ही है, कितना जब जिस समय आप डिलीवर कर रहे हैं वो देख सकते हैं कि आपको ये टेम्परेचर कितना है। तो आप अपनी श्योरिटी के लिए, एक तो मैंने एग्जांपल इसका इनोवेशन का दिया। इसके अलावा हमारे जो और स्टूडेंट हैं, इस तरीके के और इनिशिएटिव, चाहे वो स्टार्टअप के लिए ले रहे हों या इनोवेशन के लिए, वो बहुत हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन जैसे आपने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ कल्चर ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप डेवलप करने के लिए यूनिवर्सिटी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हम एक सीरीज ऑफ इवेंट्स करते हैं जिनका अपना एक सीक्वेंस भी है, और उस सीक्वेंस का एक एंड रिजल्ट यह है कि वी आर एबल टू डेवलप एन इनोवेशन इन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में चाहे वो हेडक्वार्टर की बात हो या रीजनल सेंटर की बात हो, आज की डेट में हर जगह इनोवेशन स्टार्टअप के बारे में बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन एलुमनी, अपने आप हम तक अप्रोच कर रहे हैं अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताने के लिए, उसको शेयर करने के लिए, ऑल्सो टू गेट सम गाइडेंस, सपोर्ट, मेंटरशिप फ्रॉम अस। उसके लिए हमारा जो एक जिसे हम मेथोडोलॉजी कहेंगे, एक प्रोटोकॉल टाइप जिसे कहेंगे, सबसे पहले तो हम जो कल्चर एक डेवलप करने के लिए, इनोवेशन कल्चर यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, awareness generation, creating a kind of culture in the university by different kind of programs, events and other things. तो उसे एक वाइब्रेंसी है, स्टूडेंट्स, एलुमनी, स्टाफ, फैकल्टी, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द इनोवेशन स्टार्टअप। और अगर उनके कहीं कांटेक्ट में कोई स्टूडेंट, एलुमनी आता है तो इमीडिएटली लगता है उन्हें कि दे ट्राई टू कनेक्ट देम विद अस, विद द एनसीआईडी। इसके अलावा हम जो एक इनिशिएटिव लेते हैं टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड अवार्ड द इनोवेटर्स, गुड आइडियाज, गुड बिजनेस प्लान एंड स्टार्टअप्स। उसके लिए हम कई सारी इवेंट्स करते हैं, चाहे वो आपका बेस्ट इनोवेशन अवार्ड की हो, या आइडिया कंपटीशन की हो, या बिजनेस प्लान डेवलपमेंट हो, या आपका स्टार्टअप कंपटीशन हो। ये जो एक्टिविटीज हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि केवल हम उनको 3 या 4 को के स्टूडेंट्स को, इनोवेटर्स को अवार्ड दे रहे हैं। In fact, through these activities, we are identifying the potential innovators, potential startups, potential ideas. Yes. और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, we try to discuss these ideas with them, these initiatives with them, and then try to provide them a kind of training, mentorship. ये हमारा एक नेक्स्ट स्टेप रहता है। और उस स्टेज पे हम उनको इंक्यूबेट करते हैं, उनके आइडियाज को। डायरेक्टली अगर हम कर सकते हैं तो हम, अदरवाइज हम जो सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देयर दैट सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और उनको उसी तरीके की गाइडेंस भी दे सकें, जिसे हम 1-to-1 मेंटरिंग कहते हैं। दिस इज ए मेंटरिंग फॉर स्टार्टअप।
मेंटरिंग फॉर स्टार्टअप में, क्योंकि कई बार जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम और द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, दैट्स वाई हम उसको 1-to-1 मेंटरिंग में लेके जाते हैं। एंड देन ये मेंटरिंग करने के बाद में हम उनके लिए, ये भी नहीं है कि मेंटरिंग करने के बाद वहां छोड़ दें, वी ट्राई टू प्रोवाइड देम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो टू शोकेस देयर वर्क, देयर इनिशिएटिव, क्योंकि उन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने देखा है कि दे गेट इनपुट्स, फीडबैक फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, फ्रॉम देयर फेलो स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन, जो भी उसके व्यूअर्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, चाहे वो आपका स्टार्टअप फेस्ट हो या इग्नो उद्यमी समागम हो या स्टार्टअप महोत्सव हो, या कई बार हम ऑनलाइन स्टार्टअप मीट भी करते हैं। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, इनका मेन मकसद ये होता है कि आपस में एक तो उनको नेटवर्क करना, कनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ में फीडबैक लेना ताकि वो इम्प्रोवाइज कर सकें, एंड ऑल्सो दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस व्हाट दे हैव डन, और उससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है, पब्लिसिटी भी बढ़ती है। और आप जानती हैं कि इग्नू का जो फैमिली है कितनी बड़ी है, वी से दैट 3.5 मिलियन तो हमारे स्टूडेंट्स हैं एंड मोर देन 3.5 मिलियन हमारे अलुमनी है, एंड इफ यू आर गिविंग देम दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर स्टार्टअप, देयर इनिशिएटिव, तो एकदम से उनको पब्लिसिटी भी मिलती है। और कई केसेस में हमने देखा है कि उनको डायरेक्ट कांटेक्ट भी करते हैं दूसरे लोग, और ये इस तरीके का जो इग्नो का, हमारा एनसीआईडी का एक इनिशिएटिव है। बिल्कुल, मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि इग्नो के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनोवेटर बने, स्टार्टअप बने, और अपने एक अपना भी नाम करो और हमारा भी नाम। बिल्कुल। तो ऐसे ही कुछ इनोवेटर्स आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में। हम जानना चाहेंगे उनके इनोवेशन के बारे में, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी जानकारी मिले, और हमारे इग्नू के स्टूडेंट्स जो बाकी हैं वो भी इंस्पायर हों इनोवेशंस के लिए। तो आई रिक्वेस्ट तपनजीत जी इफ ही कैन शेयर हिज आइडियाज विद अस। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरा आइसक्रीम और शेक का बिजनेस है, तो हमारे आइसक्रीम शेक्स में किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव, डाइस, एसेंस नहीं होता। और जैसे कि सर ने बताया काफ़ी अच्छा कि जो बाजरा रागी ज्वार है, इसका अपने आप में काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यू और काफ़ी यूजेस हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपने आइसक्रीम्स में भी बाजरा रागी ज्वार का यूज़ किया है। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, जब हमने टेस्टिंग करवाई, सजेशन किया, तो सब ने कहा कि नहीं, आपके आइसक्रीम्स में या बाजरा वाले आइसक्रीम शेक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट में, या उसके कलर पे, उसके स्मेल पे। तो हमने उस पर भी काफ़ी वर्कआउट किया, जैसे कि सर बता भी रहे थे कि हमें उस पर थोड़ी ध्यान दे के अगर हम उसका स्मेल चेंज कर सकें कि लोग उसे यूज़ कर सकें, तो हम उस थ्रू भी हमने बाजरा रागी ज्वार को यूज़ किया। हम अभी बीटरूट दोनों का यूज़ कर रहे हैं अपने आइसक्रीम और शेक्स में। और अगर कहा जाए तो अगर किसी को मिल्क से प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का अगर उन्हें ग्लूटेन फ्री आइसक्रीम शेक्स भी चाहिए, तो हम प्लांट बेस्ड मिल्क से उसका भी यूज़ कर रहे हैं। तो और मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम अपनी आइसक्रीम शेक्स को सर्व करने की बात करें, तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा शेक के लिए हमने मिट्टी के कुल्हड़ रखे हैं, और ये जो पाइप आप देख सकते हैं ये पेपर पाइप है, बट जल्दी हम कोलैबोरेशन से इसे भी बाजरा रागी ज्वार की बना रहे हैं कि लोग उसे पीने के बाद खा भी सकें। वेरी इंटरेस्टिंग। और आजकल का समय है कि हाँ जी, शर्मा जी, तपनजीत के लिए कि इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया अपना, क्रीमी माजा इनका स्टार्टअप का नाम है, और जब हम लोग कई सारे प्रोग्राम कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए एनसीआईडी से, तो उस समय ये हमारे कांटेक्ट में आए और इनका एक आइडिया था। तो फिर हमने कहा कि उस आइडिया को आप क्यों ना एक प्रॉपर एक बिजनेस में कन्वर्ट करें, क्योंकि इनके पास एक फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि इनके जो को फाउंडर हैं उनकी एक्सपर्टाइज है कि बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाने की, अलग तरीके के इनोवेटिव तरीके से शेक तैयार करने की। तपनजीत की एक एक्सपर्टाइज है कि बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना और अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना। तो ये टीम इनकी जो हमें दिखाई दी, तो मुझे लगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। और एक इन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक प्रोग्रेसिव वे में डेवलप किया है, मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जब जब इनको किसी भी हमारी तरफ से या किसी और एक्सपर्ट की तरफ से, इवन यूजर्स की तरफ से, जब भी कोई इनको एक सजेशन मिला, फीडबैक मिली, इन्होंने उसको इम्प्रोवाइज किया, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज किया, प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका इम्प्रोवाइज किया। जैसे आप एक कुल्हड़ की जो बात कर रहे हैं, नॉर्मली आइसक्रीम को हम कुल्हड़ में नहीं देखते हैं, इससे इनकी कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन जो हम बात करते हैं कि इको फ्रेंडली एक तरीके से हमें आगे बढ़ना है,
इकोनॉमी में हम डेवलप ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को भी साथ में ध्यान रखना है, पीपल्स की नीड को भी ध्यान में रखना है। ये सारे इन्होंने किया और आज की डेट में इनके मैं तो देख रहा हूँ कि कई जगह से इनको इनविटेशन आते हैं कि आप हमारे यहाँ पर अपना एग्जिबिट करिए। अभी रिसेंटली एक किसी इंस्टीट्यूट में गए थे, वहाँ मैं भी गया और हमारे यहाँ तो इनको 2-3 बार इन्होंने प्रेजेंट किया। CSIR का एक CSIR ने एक बहुत बड़ा फेस्ट किया, वहाँ पे इनका था। तो इस तरीके का ये प्रोग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं और वो एक इनोवेटर एंटरप्रेन्योर की बिल्कुल। एक वो हमारे है। पास एक हमारे इग्नू स्टूडेंट का कॉल भी है झारखंड से, उनको सुन लेते हैं कि उनका इनोवेशन किस प्रकार का है। हेलो। सम्राट जी। हेलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए अपने इनोवेशन के बारे में। जी, सभी को जोहार और जय हिंद। मैं झारखंड से सम्राट बात कर रहा हूँ, सम्राट कुमार पेठे पाटिल। मैं डीप फॉरेस्ट इस स्टार्टअप का फाउंडर हूँ। हमारे स्टार्टअप को NCIDE ने मेंटोर किया है और वी आर ड्राइविंग सोशल कॉन्शियस डेवलपमेंट एंड प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। डीप फॉरेस्ट इस स्टार्टअप में we look forward offering exotic natural food products along with our other segments like handicrafts and community tourism, but we started from our organic food segment and side by side we also look forward empowering tribal and rural communities. आज से 1.5 साल पहले हमने शुरू किया था हमारे बिजनेस को विद 300 रुपीज एंड आज हम लोगों ने अराउंड 1 मिलियन के आसपास कंप्लीट किया है हमारा बिजनेस टर्नओवर मार्केट रिव्यू फेज में। साथ ही डीप फॉरेस्ट ने अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड फूड इंडिया ग्लोबल समिट हुई थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें भी भारत के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रिप्रेजेंट किया। अपकमिंग टाइम्स में हम लोग डीप फॉरेस्ट के साथ में अभी हमारा जो एक प्राइम प्रोडक्ट है डीप फॉरेस्ट हनी, जो एशिया के सबसे डीप डेंस फॉरेस्ट जो सारंडा के झारखंड में वहां से आता है, के अलावा और भी कुछ नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स शामिल करने वाले हैं डिफरेंट FPOs के साथ में टाई अप करके, ताकि एक नेचुरल फूड ब्रांड बनने के साथ में जो हमारा सोशल कॉन्शियस थीम है उससे विमेन्स को, यूथ को लाइवलीहुड प्रमोशन भी हो सके। मैं NCIDE का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें मेंटोरशिप दी ताकि हम अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सके। थैंक यू सम्राट जी आपकी बात यहाँ रखने के लिए। अब हम जल्दी से रिक्वेस्ट करेंगे संचित जी से, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो अपने इनोवेशन के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम संचित है, मैं अपने को फाउंडर अरुणिमा के साथ हूँ। हमारा जो स्टार्टअप है वो है थाइना हेल्दी नेचुरली। अभी सर बात कर रहे थे कि कैसे एक न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम हो रहा है, तो हम 3 पिलर्स पे काम कर रहे हैं कि कैसे सशक्तिकरण हो हमारी महिलाओं का, कैसे समृद्धि बढ़े हमारे किसानों की, और कैसे स्वास्थ्य बढ़े हमारे अपने फैमिली, जितने हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारा यूजर बेस है उनका। तो हम 2 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये एक हमारा देसी घी है, जो एक हम ट्रेडिशनल जो हमारा प्रोसेस होता था उसको हमने एक्सप्लोर किया है, जहाँ पे हम आज गाय पालन की बात करें तो कोई भी किसान आज गाय नहीं पालना चाहता, क्योंकि उसकी कमर्शियल वैल्यू उसको नहीं दिखती, इसलिए वो या तो जर्सी गाय पालता है या वो भैंस पालता है या अन्य पशु पालता है, पर जो देसी गाय है वो नहीं पालता। तो हमारा जो पूरा जो हम कर रहे हैं वो प्राकृतिक कृषि, ऋषि कृषि, गौ आधारित कृषि कैसे एक अच्छे लाभकारी वे में कर पाए वो हम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा ये घी की खासियत, ये देसी गाय का घी है, ये हमारी महिलाएं, गांव की महिलाएं बना रही हैं। और गांव की महिलाओं का अगर हम देखें तो आज अगर हम देखें महिलाएं सिर्फ 100 से 150 रुपए तक का ही मतलब उनका जो डेली वेजेस रहते हैं वो रहते हैं। पर अगर हम उसकी बात करें क्या कहते हैं उनकी अगर अर्निंग की बात करें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि पहले तो सबसे पहले वो गऊ पाले, देसी गाय पाले, और फिर देसी गाय से ये जो घी बना रहे हैं इसमें हमने जो इनोवेशन किया है, यहाँ पे उनका कोई खर्चा नहीं है बिल्कुल भी। कंडों पे दूध को उबाला नहीं जाता, पकाया जाता है और फिर दही बनाया जाता है। दही से क्या कहते हैं बिलोना करके उसका हम ये घी बनाते हैं। और इस घी की खासियत है, इसको आप रखेंगे भी तो इसकी शेल्फ लाइफ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये आयुर्वेदिक विधि से बना है। दूसरा फिर मैं आता हूँ समृद्धि की तरफ। जब हमारा जो किसान है, हमारा किसान का जो परिवार है, जब वो गाय पालन करता है तो गाय के जो गौमूत्र और उसका जो गोबर है उससे उसको अनगिनत इन्फिनाइट आपको फर्टिलाइजर और वो अलग अलग उसके सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, अमृत जल हो गया। ऐसी अलग अलग विधि हैं जो हम साथ में उनके साथ करते हैं और उससे फिर वो अपनी खेती करते हैं। और उसमें फिर दूसरी चीज आ जाती है ये देसी बीज।
ये गेहूं है एक प्रकार का, और ये सोना मोती गेहूं है। इसकी खासियत क्या है, एक बारी इसको खोल के आप छोटा छोटा इसके दाने दिखाइए कि ये गेहूं में नेचुरली फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आज हमें सबको विटामिन बी की कमी हो गई है, और ये आप देखिए कितना छोटा छोटा गेहूं है। थोड़ा और इसमें तो ये गेहूं जब किसान करता है, आप शायद थोड़ा ये गेहूं देखेंगे तो बहुत छोटा गेहूं है ये, और इसका नाम ही सोना मोती है। एकदम ऐसा गेहूं है जिसमें क्या कहते हैं, आपका शुगर कंटेंट कम है, और इसकी आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसकी आगे हम बहुत सारी स्टेजेस में लड्डू बना सकते हैं, इसके कुकीज़ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका उत्पादन कम होता है, पर ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो जो हमारा तीसरा पिलर है स्वास्थ्य, वो हमारे ये घी और इससे जुड़ जाता है। तो जब हमारा किसान और किसान का परिवार गौ पालन करता है और उससे रिलेटेड एक ऋषि कृषि गौ आधारित खेती करता है, तो उसको लाभ मिलता है, और यही हमारा क्या कहते हैं उद्देश्य है। मैं चाहूँगा अरुणिमा 2 वर्ड इससे बोले। इस इनिशिएटिव को जब हमने शुरू किया था तो हमें लगा कि महिलाओं को लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं घर पे काम तो पूरा करती हैं पर आमदनी उनके पास कुछ नहीं होती। तो हमने ये देखा कि जहाँ पे कुछ ना से अगर हम उनको गाय पालन सिखाते हैं, ये विधि सिखाते हैं, तो इनकी आमदनी आराम से 7,000 के करीब महीने की हो जाती है, जो जनरली हम नहीं देखते हैं होते हुए। तो ये एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव है, और धन्यवाद इसके लिए। आपकी डायरेक्शन में हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं आगे से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एक तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर का, जहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है, और फिर हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा किया है, और NCID से जो हर पड़ाव में हमें जब हमें डाउट्स होते हैं, सजेशन हमें चाहिए होते हैं, हमें मेंटरिंग चाहिए होती है, हमें गाइड करने का। धन्यवाद। Thank you. We are proud of our IGNOU students who have started their entrepreneurship in these sectors. और इसी तरह से हम कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। मैं बस संक्षेप में आपसे आपके अंतिम विचार जानना चाहूँगी, दिनकर जी और शर्मा जी, हमारी लर्नर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। यस मैडम। तो जो भी हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें आइडिया, मनी एंड लीगल एस्पेक्ट्स है। तो अब ये तो हम सविस्तर यहाँ बात नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैं बताऊंगा कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है उनके पास जाके हमें कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अलग अलग से फायर वाले हैं, एनवायरनमेंट वाले हैं, एनवायरनमेंट सेक्शन से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अलग अलग से हमें अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। और उसके बाद जो हम प्रोडक्ट कमेंसमेंट की तरफ जाते हैं ऑपरेशन के, तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। स्पेसिफिकली FSSAI का जिक्र करना चाहूँगा मैं। FSSAI से सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर ही हम मार्केट में जा सकते हैं। शर्मा जी। मैं तो ये कहूँगा कि इग्नो के स्टूडेंट्स जो भी, जिनके भी कुछ आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिल्कुल आगे आइए, हम आपके साथ में, और जिस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज विद यू, एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल आवर स्टूडेंट्स, तपनजीत, संचित एंड सम्राट एंड मेनी अदर्स, जो कि इस अपने आप इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी होप दैट वो बहुत आगे तक बढ़ेंगे। Thank you so much, Dr. Dinkar ji from School of Agriculture and Dr. O.P. Sharma ji from NCID. Thanks also to our students, and with this we end our session. Our thanks are due to our Honorable Vice Chancellor, Professor Nageshwar Rao ji, and Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Kiran Hazarika ji. बहुत सारी संभावनाएं हैं हर क्षेत्र में, और इसी तरह से हम उद्यमिता की ओर के बाकी एपिसोड्स में हमारे लर्नर्स को डिफरेंट सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताते रहेंगे। Thank you so much.